सब्सक्राइब करें मेरे चैनल द नॉलेज अड्डा को, बेल आइकन प्रेस करें मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello friends, in this lecture today I am going to discuss data model in database management system. So these are basic content which I covered in this later introduction of data model, types of data model, your model in database management system, object oriented model, relation model, hierarchical model, network model. So let's start from data model. What is data model? Data model is basically logical structure of database. कहने का मतलब क्या है कि data model जो हमारा होता है बेसिकली एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। ये बेसिकली क्या होता है, इसका जो डिजाइन होता है वो इंटिटी एट्रीब्यूट्स उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के मॉडल को बेसिकली हम डेटा मॉडल बोलते हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस का है कि जो कि इंटिटी एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप के बीच में क्या रिलेशन है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। जो डेटा मॉडल के टाइप्स होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल मॉडल और फिजिकल डेटा मॉडल। और ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिकल मॉडल फर्दर टू टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज ईआर मॉडल, सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल होता है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिकॉर्ड्स को, फील्ड्स को एंड एट्रीब्यूट्स को। So record-based logical model, they are object-based model. They also describe the data at conceptual and view level. These model are specify the logical structure of database with records, field, attributes. These are relational model, hierarchical model, network model. Physical data model basically describe the data at the lowest level of abstraction. Abstraction means data view. हमने पिछली लेक्चर में डिस्कस किया था कि डेटा व्यू बेसिकली क्या होता है, एक फिजिकल, लॉजिकल और व्यू लेवल। तो बेसिकली इस मॉडल में होता है कि वो लोवेस्ट लेवल पे डेटा को डिफाइन करते हैं या डेटा का एब्स्ट्रैक्शन होता है। नाउ फर्स्ट वन इज ईआर मॉडल। ईआर मींस होता है एंटिटी और रिलेशनशिप। ईआर मॉडल यूजेज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड एंटिटीज एंड रिलेशनशिप अमंग दोज ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा ईआर मॉडल होता है बेसिकली बेसिक ऑब्जेक्ट को यूज करता है जिसको हम एंटिटी बोलते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा ईआर मॉडल। बेसिकली एंटिटी और रिलेशनशिप इज ए सिस्टमेटिक वे टू डिस्क्राइबिंग एंड डिफाइनिंग द प्रोसेस। द मेन कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल्स आर एंटिटी सेट और रिलेशनशिप सेट। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये एक हमारा पर्टिकुलर एक ईआर डायग्राम है, सैंपल ईआर डायग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं। तो बेसिकली इन दिस स्टूडेंट इज एंटिटी और दिस स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस इज attributes. This diamonds basically represent relationship set. College is entity, college ID or college name is attributes. Now in this type of data model, rectangle represent the entity set. Here student is entity set. Ellipse represent the attributes, student ID, student name, student address, college ID, college name represent attributes. Now diamonds represent the relationship set. This where mention study in, that is relationship set. Now lines they link these lines, first, second, third, these lines. Talking about these lines basically show relationship between attributes in entity and relationship set, relationship set to entity and entity to attributes. So basically this particular line define lines, they link attributes to entity set and entity set to relationship set. Double ellipse representing multi-valued attributes. Multi-valued attributes means such type attributes which contain more than one value. That type of attributes are called multi-valued attributes. Dashed ellipse represent derived attributes. In this type attributes basically a particular attributes dependent upon other attributes. You can say कि derive
On other attributes, this type attributes are generally dynamic. Dynamic means they can change upon certain condition. Double rectangle represent weak entity set. Double line represent total participation of entity set in a relationship set. Now, multi-valued attributes and attributes that can hold multiple value known as multi-value attributes is represented by double ellipse. In this figure you can say that ki student, there is a attributes student phone, means a particular student can have more than one phone number. कहने का मतलब अगर मैं अब दो नंबर यूज करता हूँ, मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये स्टूडेंट कैन हैव मोर देन two phone number. So this type attributes means student phone attributes is called multi-value attributes because ये particular student can have more than two phone number या more than one phone number. Means multi-valued attributes mean an attribute that can hold multiple values. Example, a person can have more than one phone number, so the phone number attribute is multi-valued. Talking about derived attributes. In derived attributes is one whose value is dynamic and derived from another attributes. Is represented by dash label. In this diagram, you can see the example of age and date of birth. Both are age are derived attributes because when date of birth will be changed, then definitely age will be changed. Means age is dependent upon date of birth. So means age is डिराइव एट्रीब्यूट्स क्योंकि ये हमारे डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है. जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ चेंज की हमारी एज चेंज हो गई. मीन्स ये एक दूसरे को कोरिलेट कर रहा है. मतलब जैसे डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी हमारा एज चेंज होगा. मीन्स जो एज हमारा एट्रीब्यूट्स है वो डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंडेंट है. तो ये पर्सन एज इज डिराइव एट्रीब्यूट्स एट चेंज ओवर टाइम एंड कैन बी डिराइव फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स एट डेट ऑफ बर्थ. तो कहने का मतलब है कि जो भी एक पर्सन और स्टूडेंट की जो एज है वो हमारा एक डिराइव एट्रीब्यूट्स हो सकता है क्योंकि वो टाइम बाय टाइम चेंज होता है क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंडेंट है. जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी एज हमारी चेंज हो जाएगी. टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी सेट मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इन ए रिलेशनशिप सेट. कहने का मतलब है कि मस्ट हैव ए. तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि college entity set in studies relationship. This indicate that each college must have at least one associated student. Now, object-based data model. An object database is a database management system in which information is represented in form of object, as used in object-oriented programming. Basically, कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमारा एक database होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली इसको हम ऑब्जेक्ट रूम में प्रेजेंट करते हैं. एज जैसे कहने का मतलब जो हम ग्रुप्स की प्रोग्रामिंग करते थे तो बेसिकली उसमें क्या होता था कि हम क्लास को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे. जैसे हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी प्रॉपर्टी या क्लास का कोई भी कंपोनेंट अगर हमें कॉल करना होता था तो हम क्या करते थे भाई, ऑब्जेक्ट डॉट. जैसे हमने डॉट प्रेस किया तो हमारी क्या हुई, उसके रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी हमें दिख जाती है. तो बेसिकली क्या इसमें इस मॉडल में क्या है कि उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं. ये जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस मॉडल है वो बेसिकली रिलेशनल डेटा मॉडल से डिफरेंट होता है क्योंकि जो रिलेशनल डेटा मॉडल होता है बेसिकली वो टेबल फॉर्मेट पे काम करता है, जबकि ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल एक पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है. Object-oriented programming has become the dominant software development methodology. This led to development of an object-oriented data model that can be seen as extended ER model with notation, encapsulation, method, and object identity. The object relation data model combines the feature of object-oriented data model and relation data model. Means ये दोनों का combination होता है. Now relational data model basically क्या होता है कि data and relationship are represented by collection of interrelated table. तो कहने का मतलब होता है कि जो रिलेशनल डेटा मॉडल है इसमें बेसिकली जो भी हमारा डेटा और रिलेशनशिप जो रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू टेबल रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ आप यहाँ पे दो टेबल देख सकते हैं, स्टूडेंट कोर्स आईडी. हियर स्टूडेंट आईडी 111, स्टूडेंट अमित, एज सेम लाइक दिस. अब नाउ
एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, वो कौन सा कोर्स पढ़ रहा है। जैसे हमने लिया 111, आप देख सकते हैं कि ये आईडी इस टेबल में भी है और 2 बार आईडी आएगी। मीन्स अगर हमने इस आईडी से किसी को फेच करना हुआ तो हमें मिलेगा क्या, अमित, उसकी एज 22 है, मैथ्स 2 पढ़ रहा है और डीबीएस पढ़ रहा है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग भी वही स्टूडेंट आईडी पास हो रही है। तो बेसिकली इस टाइप का जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल। इसमें क्या होता है, डेटा एंड रिलेशनशिप आर रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटर कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड टेबल, या टेबल के थ्रू इसमें जो भी इंफॉर्मेशन और उसके बीच में रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। हायरार्किकल डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ ईच रिकॉर्ड हैविंग वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मेनी चिल्ड्रन। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेरेंट है और मेनी चिल्ड्रन है। तो बेसिकली ये एक क्या होता है कि हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है with each record having one parent record and many children. The main drawback of this model that it can have only one to many relationship between nodes. Only one to many relationships. Now network model. Network model basically क्या था, same as hierarchical model, but it has a graph like structure rather than tree based structure. Hierarchical में basically क्या था, जो भी हमारा structure था वो ट्री बेस्ड था, इसमें क्या होता है, ग्राफ बेस्ड होता है। तो इसमें करने का मतलब है ये जो स्ट्रक्चर होता है तो बेसिकली अलाउ करता है कि एक रिकॉर्ड के पास मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है कि जो एंटिटी ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्राफ इन व्हिच सम एंटिटीज कैन बी एक्सेस्ड थ्रू सेवरल पाथ। इसमें सपोज डिपार्टमेंट की बात करें, हमारा डिपार्टमेंट यहाँ से भी एक्सेस होता है, यहाँ से भी एक्सेस होता है। अगर हम पेरेंट की बात करते हैं, अगर नेम प्रोफेसर की बात करें तो इसका पेरेंट स्टूडेंट भी हो सकता है और डिपार्टमेंट भी हो सकता है। तो मतलब इसमें क्या आता है, एक रिकॉर्ड के बाद मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। नाउ तो बेसिकली दीज आर डेटा मॉडल इन database. Data model is basically logical structure of database. It describes the design of database to reflect entities, attributes, relationship among that. So there are three types of database: object-based logical model, record-based logical model, or physical data model. Further, object-based logical model divided into two types. One is ER model, object-oriented model. In ER model, record-based model, basically they are object-based model. They also describe the data at conceptual view level. These models specify the logical structure of database which records field attributes. These are relational, hierarchical, or network. Physical data model basically represent at the lowest level of abstraction. Now ER model मतलब क्या होता है, entity और relationship. तो basically क्या होता है, जो भी information होता है ये हमें इसमें जो हमारा data model is a collection of basic object called entities and relationship. बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो उसको हम इसमें एंटिटी बोलते हैं और उसके बीच रिलेशनशिप क्या होता है वो हमारा ईयर मॉडल शो करता है। इस फिगर में एक सैंपल हमारा आप देख सकते हैं कि एक सैंपल ईयर डायग्राम है। ये जो रेक्टेंगल है इसको हम बोलते हैं एंटिटी, जो इलिप्स है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जो हमारा डायमंड है इसको बोलते हैं रिलेशनशिप सेट। नाउ दीज आर एट्रीब्यूट्स, स्टूडेंट है एंटिटी, और दिस लाइन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप among these, मतलब entity to attributes, entity to relationship set to entity, entity to attributes. So basically these are factors जो used to define ER model in database management system. Here you can say that rectangle represent entity set, ellipse represent attributes, diamond represent relationship set, lines they link attributes to entity set, double ellipse represent the multi-valued attributes, dash derive attributes, double weak and double line represent total participation. Now the multiple attributes which type attributes which contain more than one value या multiple value. Same like a student can have more than two phone number या more than one phone number. So in that condition that phone number is multi-value attributes. Now derived attributes mean this type attributes are dynamic and derived from another attributes. In this example you can see that age is
जस्ट डिराइव फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि जैसे ही हमें डेट ऑफ बर्थ चेंज हुई हमारा एज चेंज होगा। तो बेसिकली क्या है, एज हमारा इस पर डिपेंडेंट है। तो इन दिस एग्जाम्पल एज इज डिराइव टू बस। टोटल पार्टिसिपेशन मीन्स कि each college must have at least one associated student. Now object based data model, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हम एज ऑब्जेक्ट रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन डेटा मॉडल में बेसिकली क्या होता है, जो भी डेटा और रिलेशनशिप है वो हम टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल क्या होता है, हमारा रो और कॉलम का ग्रुप होता है। फिर कॉलम क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है और रो रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टूडेंट है वर्क एज एंटिटी, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज वर्क एज एट्रीब्यूट्स एंड दीज आर records of this table, same as course student id, course number attributes और these are records और course is entity। now अब देख सकते हैं कि जैसे हमने 1 प्रेस किया तो इसके थ्रू जितने भी इंफॉर्मेशन है we can find out अमित, एज, कोर्स नेम, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है यूजिंग दिस स्टूडेंट आईडी। नाउ हेड का डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। Each record है one parents and many children। इसका ड्रॉबैक बेसिकली क्या था कि इसके पास सिर्फ 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन नोड्स होता है। नेटवर्क डेटा मॉडल बेसिकली क्या होता है, सेम लाइक हिरारिकल मॉडल, बट डिफरेंस क्या था कि ये इसका जो स्ट्रक्चर था वो ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर था। इसमें क्या होता है कि एक चिल्ड्रन के पास मल्टीपल पेरेंट्स रिकॉर्ड हो सकते हैं। और नेटवर्क मॉडल में एंटिटी हमारी इस वे में एकनाइज होती थी कि some entities can be accessed through several paths। तो these are basic data model in database management system। So thank you for watching this video। Please subscribe channel for more video। Thank you।